اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، سڈنی کی بونڈائی بیچ پر حملہ کرنے والے ساجد اکرم کا بھارت سے تعلق ثابت ہو گیا۔ بھارتی پولیس نے بیان جاری کر کے بتایا کہ ساجد اکرم حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتا تھا۔ ساجد اکرم 27 سال پہلے اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا پہنچا تھا، بعد میں اس کا ویزا ریزیڈنٹ ویزے میں تبدیل ہو گیا۔ انڈین پولیس نے بتایا کہ ساجد اکرم نے 1998 میں انڈیا سے آسٹریلیا جانے کے بعد 6 بار انڈیا کا دورہ کیا۔ اس کا انڈیا میں اپنے خاندان سے رابطہ کم تھا۔ انڈین پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ساجد اکرم کے خاندان والوں کو ساجد کے انتہا پسند خیالات سے متعلق کوئی علم نہیں تھا۔ انڈین پولیس کے مطابق ساجد اکرم کے گھر والوں کو ساجد کے انتہا پسندی کی طرف مائل ہونے والے حالات کا علم بھی نہیں تھا۔ انڈین پولیس نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ سڈنی کے بونڈائی بیچ پر حملہ کرنے والے جن عوامل کی وجہ سے شدت پسندی کی طرف گئے، ان کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انڈین پولیس کے مطابق بھارت چھوڑنے سے پہلے ساجد اکرم کا انڈیا میں کوئی منفی ریکارڈ بھی نہیں تھا۔ بونڈائی حملہ آور ساجد اکرم کا تعلق حیدرآباد دکن سے ثابت ہونے کے بعد بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ بھارتی پولیس کے بیان سے پہلے بھارتی میڈیا نے جعلی سوشل میڈیا پروفائلز کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی منظم سازش کی۔ حملاور کے طور پر ایک مسلمان کا نام سامنے آتے ہی بھارتی اور اسرائیلی میڈیا نے پاکستان پر الزام تراشی شروع کر دی تھی۔ ماہرین کے مطابق یہ واقعہ ایک بار پھر نشاندہی کرتا ہے کہ بھارتی میڈیا کس طرح بغیر تصدیق اور شواہد کے پاکستان کے خلاف منفی بیانیاں گھڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ بونڈائی بیچ پر دہشت گردی کے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حملاور نے گاڑی سے نکل کر بڑی بندوق نکالی اور فائرنگ شروع کر دی۔ عینی شاہد نے کہا کہ اس نے لوگوں کو وہاں سے بھاگنے کا کہا، پر کسی نے اس کا یقین نہیں کیا۔ بونڈائی بیچ پر دہشت گرد حملے میں ہلاک افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ساحل پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ شمع روشن کی، پھول رکھ کر مرنے والوں کو یاد کیا گیا۔ سڈنی کا مشہور اوپرا ہاؤس مرنے والوں کی یاد میں روشن کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ فیض حمید ان کی چیخیں سننا چاہتے تھے، اس لیے بغاوت کے الزام میں گرفتار کر کے تشدد کیا گیا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے ماہر قانون کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ نے انکشاف کیا کہ فیض حمید صحافیوں کو بھی لاپتہ کرتے تھے۔ آپ بھی بغاوت کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے اور آپ پر تشدد بھی ہوا تھا۔ اتنا انہوں نے مارا کہ ایک بریگیڈیئر صاحب جو تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ یار جان چھڑا اپنی بھی تے ساڈی بھی، وہ تیریاں چیخاں سننا چاہتا ہے جنرل فیض حمید، تو رولا پا تینوں مارتے رہے ہیں تاکہ تیری وہ جان چھوڑے، وہ اس کو تسکین ہو۔ تو میں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے، میں نے اپنی زبان جو ہے نا وہ اپنے دانتوں کے نیچے اس لیے لے لی کہ کہیں ان کی مار کٹائی سے میری چیخ نہ نکل جائے تاکہ اس کو تسکین نہ پہنچے۔ میں مرتا ہوں مر جاؤں مگر کم از کم اس کو تسکین نہ پہنچے۔ مدثر نارو تو بلوچستان کا نہیں تھا، خیبر پختونخوا کا بھی نہیں تھا، لاہور کا صحافی تھا۔ اس کو کس نے غائب کیا؟ کون غائب کرتا ہے ان لوگوں کو؟ فیض حمید صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ کہاں ہے۔ ان سے پوچھا جانا چاہیے، ان کے دور میں جتنے مسنگ پرسنز ہیں ہی از ریسپانسیبل ود دیٹ، مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اگر مجھے میرے جیسے ایک ایڈوکیٹ کو جو تاحیات ممبر ہے بار کا، اس کو اگر اٹھایا کے غائب کیا جا سکتا ہے اور یہ بتایا جا سکتا ہے۔ بعد میں ایک ڈائریکٹر لیگل تھے آرمی کے جو اس میٹنگ میں شامل تھے، جب مجھے اٹھا لیا گیا اور باجوہ صاحب نے میٹنگ طلب کی، انہوں نے کہا کہ اگلے 10 سال تک اس کا نام نہیں آنا چاہیے، ہی شوڈ ریمین مسنگ فار لاسٹ 10 ایئرس۔ آپ میرے بارے میں اس ڈائریکٹر نے کہا کہ سر یہ تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ ہی از این ایڈوکیٹ آلسو۔ یہ کس کی خواہش تھی؟ باجوہ صاحب نے کہا کہ کرنل انعام الرحیم اگلے 10 سال ہی شوڈ ناٹ بی ہرڈ، مسنگ رہے، جس طرح باقیوں کی فیملیاں بھاگ رہی ہیں، لیٹ دیئر فیملی رن اراؤنڈ۔ کراچی کے علاقے لیاری میں ترقیاتی کام کی تقریب سے خطاب میں میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا لیاری بلاول بھٹو زرداری کے منصوبوں کی وجہ سے دنیا میں پہچانا جا رہا ہے۔ بھارتی فلم دھرندر سے متعلق مرتضی وہاب نے کہا بلاول کے اقدامات مودی جیسے غیر دوست رہنماؤں کو بھی خفا کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویژن ہے کہ ایک پرامن کراچی، پرامن لیاری، ایک خوشگوار لیاری جہاں پہ تمام خوشیاں ہوں، تمام رونقیں ہوں، اس کو بحال کرنے میں ہم انشاءاللہ اپنا کردار ادا کر پائیں گے۔ انہی کاوشوں کی وجہ سے مودی جو ہے وہ بلاول صاحب سے خائف ہے۔
और इसीलिए वो धुरंधर करता है। मेरे ख्याल में ये सारे काम इस बात का सबूत है कि लियारी वाले धुरंधर को धूल चटवाएंगे और हमेशा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू इंतकाल कर गए। उनका ताल्लुक हवेली लखा से था। मंजूर वट्टू अपने सियासी करियर की इब्तदा में रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। बतौर वज़ीर आला पंजाब उन्होंने सूबाई उमूर, इंतज़ामी इस्लाहात और सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया। सियासी और समाजी अवामी हलकों ने उनके इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी ने कहा है कि जिन अफराद के वीज़े प्रोटेक्टर के तहत मुकम्मल हो चुके हैं उन्हें पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से ऑफलोड नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब करते हुए ओन चौधरी का कहना था कि अगर किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को किसी किस्म की मुश्किल पेश आए तो वो फौरी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से राबता करे। हुकूमत सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की तजावीज़ को संजीदगी से ले रही है और मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी एहसानुल हक बाजवा ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की मईशत की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। शुरका ने मुतालबा किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इंश्योरेंस और पेंशन पॉलिसी मुतारिफ करवाई जाए। पुलिस ने दावा किया है कि सादकाबाद से कोयटा जाने वाली बस के तमाम मुसाफिरों को डाकुओं से बाजियाब करा लिया गया है। DSP का कहना है कि डाकू 14 अफराद को अगवा करके ले गए थे। एक मगवी की लाश फसलों से मिली, जबकि डाकुओं के साथ मुकाबले में एक पुलिस अहलकार जख्मी भी हुआ। नज़ीर अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे दरवाजा से ड्राइवर ने खोला, ड्राइवर को गोली मारा, फिर हम लोग पीछे गए, पीछे से हमें मारते हुए लाया, एक लेडीज के साथ हम बैठ गया। अच्छा। फिर हमें छोड़ दिया, फिर सवारियों को कुंदा मारते हुए उतारते हुए ले गए। ये बस क्लीनर है जो सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर हमले और 19 अफराद के अगवा का ऐनी शाहिद है। अगवा की इस दिलखराश वारदात के बाद जब जियो न्यूज़ की टीम ने बस के अंदरूनी मनाजिर दिखाए तो जगह जगह फायरिंग के निशानात मौजूद थे और जो है फायरिंग की वजह से जो है इस वक्त अंदर की जो सूरत हाल है, ये आप जो है ये वो टायर हैं जो इस वक्त तब्दील कर दिए गए हैं। ये यहाँ पर टायर जो है गोलियां लगने से बस्ट हो गए थे। तमाम टायर जो है गाड़ी के वो फायरिंग करके जो है वो तबाह कर दिए गए थे, फट चुके थे। सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब इस वक्त हमला किया गया जब वो घोटकी के इलाके मुरीद शाख से गुजर रही थी। जख्मी मुसाफिरों ने जियो न्यूज़ को बताया कि हमला आवरों की तादाद 30 से 40 थी। फायरिंग इस कदर शदीद थी कि अफरा तफरी मच गई। मुसल्ला डाकू बस से मुसाफिरों को अगवा करके कच्चे की जानिब ले गए। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी ने ताकुब शुरू किया और डाकुओं और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 9 बजे का टाइम था, तकरीबन 30-40 बंदे आ गए, फायरिंग मेरिंग किए, जो बस का फ्रंट शीशा वो भी टूट गया। फिर हम लोग जो अगवा करके ले गए साथ। सादिकाबाद से कोयटा जा रहे थे तो ये 25 किलोमीटर आगे डाकू पहुंच गए। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग को उतारा, ले गए उधरी, फिर वो क्या नाम है वो लूटा है, फिर आगे ले गया। अगवा की इस वारदात के दौरान एक मुगवी दिल का दौरा पड़ने से जाँ बाक हुआ। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुगवी की शिनाख्त करीम बख्श के नाम से हुई जो डेरा अलायार जिला जाफराबाद का रहायशी था। पुलिस हकाम के मुताबिक मुगवी की लाश ऑपरेशन के दौरान बरामद हुई। अगवा की वारदात के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है और डाकुओं के मुख्तलिफ गिरोहों और सौलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। साथी रिपोर्टर असलम मलिक के साथ नज़ीर अहमद, जियो न्यूज़ घोटकी। कराची में ई चलान सिस्टम के नफाज के बाद ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में वाज़े बेहतरी देखने में आई है। ताहम इसके साथ ही जाली और टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल में भी इजाफा सामने आया है। 19 दिसंबर से फेक नंबर प्लेट्स के खिलाफ मुहिम का आगाज किया जा रहा है। फेक फैब्रिकेटेड टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स का आ रहा है, इसको भी हमने सख्ती से देखना है और अगर ये कानूनी तौर पे क्रिमिनल एक्ट बनता है, इस पे हम न सिर्फ गाड़ी को डिटेन करेंगे बल्कि FIR भी देंगे। ये मैं पहले से वार्न कर रहा हूँ जो इस तरह की वायलेशन कर रहे हैं। नंबर प्लेट्स ख़ास तौर पे ग्रीन लगा के वो चला रहे हैं। सरकार के किसी महकमे का अपने आप को हवाला दे के कभी ऑनरेबल कोर्ट्स का भी हवाला दे के उस पर भी एक्शन होगा और उसके खिलाफ भी काइनेटिक एक्शन आपको डिटेल में बताएंगे कि हम उसमें भी करेंगे। डिटेंशन भी है उसमें और दूसरी चीज़ें भी हैं और प्लस जो वो नंबर प्लेट है इस तरह का वो कॉन्फिस्केट भी हो जाएगा।
गुजरांवाला में 2 मुख्तलिफ वाक़यात पे पुलिस मुकाबले हुए हैं। 2 मुल्ज़िमान हलाक। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम इरफान ने गुज़िश्ता माह हेड कांस्टेबल को फायरिंग करके ज़ख्मी किया। मुल्ज़िम सुलेमान डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस था। गुजरांवाला से आपको अपडेट कर रहे हैं। 2 मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस मुकाबले हुए हैं जिसमें 2 मुल्ज़िमान हलाक हो गए। तर्जुमान पुलिस का बताना है कि मुल्ज़िम इरफान ने गुज़िश्ता माह हेड कांस्टेबल को फायरिंग करके ज़ख्मी किया था। गुजरांवाला पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुल्ज़िम सुलेमान डकैती और राहज़नी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। गैर मुल्की परवास के मुसाफिर के जूते से मनशियात बरामद कर ली गई। मुसाफिर के जूतों से 268 ग्राम आइस से भरे कैप्सूल मिले हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। गैर मुल्की परवास के मुसाफिर के जूते से मनशियात बरामद कर ली गई। मुसाफिर के जूतों से 268 ग्राम आइस से भरे कैप्सूल मिले हैं। IT माहिरीन का कहना है कि मुल्क में पानी की किल्लत ख़त्म करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा और नहरी निज़ाम को जदीद तकाज़ों पर उस्तवार करके ज़रई इनकलाब और दरियाओं से खुश्क साली का खात्मा किया जा सकता है। हाजी खान से आल रिपोर्ट करें। जामशोरों में MH इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्टडीज़ की जानिब से पहले आबी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें आबी माहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि कराची में 70% और बाकी सिंध में 90% लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मसला पानी का नहीं बल्कि ख़राब हुक्मरानी का है। उन्होंने कहा कि दरियाओं को अपने रास्ते पे चलने दिया जाए तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। ये इंतहाई ज़रूरी है और पानी की पॉल्यूशन, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, पानी का ज़ियान, सिविल सोसाइटी में पानी की ज़रूरत, ये ऐसे मौजू हैं जिनकी तरफ अब तक तवज्जो नहीं दी गई। जैसे डेवलपमेंट हो रही है उस डेवलपमेंट के साथ साथ पानी भी जो है वो आलूदा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। मेले में किताबों के स्टॉल, फूड स्टॉल, फ़नी नुमाइश और सकाफती रंग को भी उजागर किया गया। मेले में दानिश्वर जामी चांडियो, मुकेश कुमार, डॉक्टर अब्दुल हमीद सुमरो, आलिया बख्श थल्लो और दीगर ने भी शिरकत की। हाजी खान सियाल, जियो न्यूज़, जामशेरो। मुसलमान खातून का नकाब खींचने पर भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार मुसलसल तनकीद की सद में हैं। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है कि किसी अवामी अहदेदार का हिजाब को ज़बरदस्ती हटाना उसकी इज्जत, शनाख्त और ख़ुद मुख्तारी पर हमला है। ऐसे इक़दामात माशरे में खौफ बढ़ाते हैं। भारत में इंसानी हुकूक के रहनुमाओं का कहना था कि वाक़े से भारत में अक़लियती ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। इस वाक़े के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ फ़ौरी और शफ़ाफ़ कार्रवाई की जाए। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब इमारात को 70 रन से शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 25 से 28 दिसंबर तक कराची में होगी। कॉन्फ्रेंस में अदब के साथ माहौलियात जैसे अहम मसाइल पर बात होगी। कॉन्फ्रेंस का ऐलान सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़हरा निगाह, पीरज़ादा कासिम, रज़ा सिद्दीकी, नूरुल हुदा शाह और एजाज फारूकी भी शामिल थे।